Good morning, my dear respected students. And today we are just begin with chapter number 8. I have skipped that chapter number 7 for due to some reasons. So we have just begin with data structures, and this is our chapter number 8. And now we are just supposed to discuss the concept of data structures. मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से मन को एकाग्रचित करके देखने की कृपालता कीजिएगा. It's my humble request that we are supposed to discuss something which is theoretical, and then we are just supposed to discuss something which is practical, and after that we are just begin with analyzing you all. That I just want to take a test of you all today. Okay, first of all, when we talk about the introductory part here, a data structure is a named group of data of different data types. It means when we talk about different types of data, for example, if you want me to discuss the same with the help of an practical demonstration, what we are going to do, we are just going to mention here a is equal to 10, hit that enter. Then there is type of a, it says sorry, okay, no problem, type of a, it says that is integer. And if I just mentioned here that b is equal to Kawaljeet here and hit the enter, and after that I just mention it as like type B here, so it says this is a string. Simultaneously, if we just mentioned it like this 98.32 and hit that enter key, yes, they store that particular number. But if we have mentioned type of C, so in that case they have just displayed that this is a float data type. मेरे बच्चों को मेरी बात यहाँ तक तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी. Okay, after that, my dear respected students, it says that they contain a different data types which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. Okay, sir, can you please again just display that example which you have discussed right now? Yes, why not? I'm just going to display the same only. Okay, so what happened here, that we are declaring different variables for storing these data. That is, first a is equal to 10, after that b is equal to Kawaljeet, and c is equal to 98.32. That is integer, string, and float. So they ask and they just instruct us that the each and everything is being stored in a particular data which is to be called as a data type. And in a very easy words, data type is basically the combination of different data types. Data structure is the combination of different data types. For example, I am just mentioning here details. Okay, so what we can do here, we just mention it like 10 here. After that, there is a Kawaljeet here. And after that 98.32, and after that I'm just going to close this and hit the enter key. And whenever we are just going to talk about that, we just mention it like that, details, they display the content which is the combination of different data types, as well as if we can mention the type of details here, DETAILS, details here, so they can just tell me that this is not an individual data type, this is a combination of different data types, and that should be called as a list. Okay, so next it says a data structure has well-defined operations. These are the different types of operations we can perform. Behavior and properties, these are the different types of behaviors, operations which we can perform on that particular data type. So can I take one or two examples of different operations which is to be performed on a data? So what we can do, we just mention it like data 1 here, and we just mentioned 23, 45, 1, 6, 79, and we are just going to close this. And okay, no problem with that. I have just supposed to insert the equal to symbol, I think so. So what I do here, I just copy and paste this information here, and hopefully if this is perfect. Yes. So what we can do, what kind of operations we are supposed to perform, that is a data one dot operation. For example, I am just going to take it as sort here, and whenever we are just going to hit that enter and mentioning a data one here, what they do,
they just display the content in a sorted form. This is a sorted form in that case. And one more example, if I just want to take it here, the data one here, I just hit the enter key and the content will be displayed. Okay. If I just remove all the elements of that particular, so how we can do that? We just mention it as data one dot clear here and hit the enter. And this time when we type data one and hit enter, they just tell me the empty square brackets, which says that there is nothing in that particular list. Okay. Can I ask some questions here? Very good, very good. So I'm just begin with my questions here right now with this slide only. This relate to this slide only. Bhagatpreet ji, आपको क्या समझ आया? Bhagat ji, kindly unmute yourself and can you please elaborate what you understand from this slide? Very good. Yes, sir. बोलिए भगत जी. Data structure is a well-defined operation, behavior, or property which can be modified and deleted afterwards. And basically, the data structure is the combination of multiple different data. Different data types. Very good. Thank you very much. Thank you. One more student, I need to elaborate this in a perfect way. मैं नॉर्मन के पास जाऊंगा. नॉर्मन कभी कभी आ रहा है आजकल. नॉर्मन, मेरा पुत्र, मेरी बात समझ आई है आपको? जो मैंने इस स्लाइड के रिलेटेड बोली है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए. यस. अपने शब्दों में व्याख्यान कीजिएगा उसका. You are supposed to describe in your own words. No need to read from the slide only. हाँ जी, प्लीज नॉर्मन जी. Sorry Norman, I am interrupting you. It's there is a issue, I think so. ग्रुप हो जाएगा, सारे डेटा सबको मिक्स कर देते हैं. वेरी गुड, सबको मिक्स कर देते हैं. ठीक है. आपके एंड पे कुछ इशू भी है मेरे को लगता है नॉर्मन, इंटरनेट का कोई कनेक्टिविटी इशू लग रहा है. सिमरन थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे. यस सर, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स है. जैसे अभी आपने एग्जांपल दी थी, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया. तो इनका जब हम कॉम्बिनेशन जैसे एज अ लिस्ट अगर हम लेते हैं तो उसे हम एक डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स एक ही जगह पे स्टोर्ड हैं. अरे वाह, क्या बात है सिमरन. मैं चाहता हूँ कि जल्दी से स्कूल खुले. ये महानुभाव जो मेरे से वार्तालाप करते हैं, इनके दर्शन करना चाहता हूँ कि ये इतने अच्छे बच्चे हैं. तो कम से कम प्रभु जल्दी से सब कुछ ठीक करे और हम वापस उसी मोड में आए जहां पे हम आप लोगों से साक्षात आपके दर्शन भी कर सकें और आप लोगों को देखकर बातचीत भी कर सके. चलिए जी, ठीक है. थैंक यू. ओके, एलिमेंट्री डाटा रिप्रेजेंटेशन हियर. इट सेज रॉ डाटा. रॉ मींस, मेरे को लगता है कि रॉ का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? रॉ मींस जो अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद अगर हम करेंगे तो क्या होता है? वेरी गुड. भगत ने अनम्यूट किया था मुझे लगता है. गुंतेज, रॉ का मतलब क्या होता है यार? RAW. गुंतेज नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा. खुशी को पता होगा. खुशी बता, रॉ का मतलब क्या होता है? सर, जो अनप्रोसेस्ड हो या अनसॉल्व. अरे वाह, मेरी बेटी ने ऊपर से पढ़ लिया स्लाइड से. अनप्रोसेस्ड हो. जो रॉ का मतलब, जिसको हम बोल देते हैं कि कच्चा प्रोडक्ट, मतलब जो अभी प्रोसेस करना बाकी है और उसको पूरी तरीके से रूपरेखा देना अभी बाकी है. सो इट सेज that raw data refers to a data that has not yet been processed. This is a kind of example here. And in a second point, it says a data item refers to a single unit of values. That is roll number. That is individually we can talk about a name, class, marks, and city. These are the options which we can consider as a data items. We can consider it as a data items. Okay. So next thing, my dear respected students, data type versus data structure. मेरे बच्चों, मुझे लगता है सबको ये बात समझ आ गई है. अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले, कहानी पढ़ने से पहले एक जने से पूछना चाहूंगा कि डाटा टाइप की कोई भी 3 एग्जांपल दे दे. कोई भी डाटा टाइप की 3 एग्जांपल कौन देगा? फटाफट अपने आप अनम्यूट करके. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, सिमरन आई थी, मुझे लग रहा है सिमरन ने अनम्यूट करने की कोशिश की. सर, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट.
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, म्यूट कर लीजिए। और डाटा स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल सिंगल, जो अभी हमने आपको स्क्रीन पे भी दिखाई है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, that there is a one single example of a data structure what we have done right now. Nupur, मैं चाहता हूं आप बता सकें अगर डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल in which we are supposed to combine or group different data types. Very good. नुपुर जी अगर आप हैं तो। भगत गुरप्रीत हैंड रेज कर रहे हैं, एक सेकंड सिर्फ भगत और गुरप्रीत, मैं चाहता हूं कि नुपुर मेरी आवाज अगर उस तक जा रही हो तो, नहीं तो फिर आप लोगों में से किसी के पास आता हूं। चल ठीक है, गुरप्रीत बोल। सर हम डिक्शनरीज को कह सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, डिक्शनरीज को आप डिफरेंट डाटा टाइप यूज करते हो उसके अंदर। यस सर। बिल्कुल करते हैं। और अभी जो हमने अभी विचार किया था वो कौन सा था बेटा डाटा स्ट्रक्चर? सर एल से स्टार्ट होता है, एल से। लिस्ट। अरे वाह क्या बात है, दैट इज अ लिस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर, कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिए, फटाफट थ्योरेटिकल पार्ट। A data type defined as a set of values along with a well-defined operation starting into its input-output behavior that is a int, float, and string. Okay. Data structure is a physical implementation that clearly defines a way of storing, assessing, manipulating data stored in a data structure here. So these are some examples. These are the very common example that when we talk about list, if we are talking about that the collection of heterogeneous type of elements, similar kind of data that it is to be considered. So different data structures. मेरा बेटा कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कोशिश करना. In that chapter, what we are discussing right now, we are just going to discuss the concept of stacks, queues. So here it is. Data structure allows the user to combine various data types in a group. ये हो चुका है. Allows you to process data in a single unit. सर ये भी हो चुका है. सर अब डाटा स्ट्रक्चर की थोड़ी सी एग्जांपल बता दीजिए. बता रहे हैं. सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, एरेज और लीनियर लिस्ट. ठीक है. कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर मींस देयर इज अ लीनियर, जो एक सीक्वेंस में काम करते हैं. वो कौन कौन से हैं? स्टैक्स है, क्यूज है और लिंक लिस्ट. और नॉन लीनियर, that is to be considered as a tree. And remember this thing, my dear respected students, when we talk about our syllabus in that context only. So we are just going to discuss these three parts here. One is a stack, second is a queue, and we can also supposed to discuss the concept which is a linked list. And here it is, it belongs to a type is a linear, whereas it also to becomes from a compound डाटा स्ट्रक्चर. मेरे बच्चों को मुझे लगता है कि मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई है. अब थोड़ा सा टेस्ट के करीब जा रहा हूं, पर उससे पहले एक प्रोग्राम करना चाहेंगे. ऑपरेशंस कौन कौन से हैं पहले ये देखिए. ऑपरेशंस हम करेंगे इंसर्शन, ऑपरेशन हम करेंगे डिलीशन, ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे सर्चिंग, ट्रैवर्सल. ट्रैवर्सल का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को वन बाय वन विजिट करना, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ट्रैवर्सल. And sorting, whether it is ascending or descending sorting, so we can do that also. And merging, we are supposed to combine the multiple list, content of multiple list or something like that into a one, that is to be called as a merging. मेरे बच्चों को सबको पता है, लीनियर सर्च के बारे में पता है. जिसको मेरे बच्चे को लीनियर सर्च के बारे में आइडिया है वो कृपया करके एक बार हैंड रेज करने की कृपालता करे. दैट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत हैंड रेज करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But it's my humble request, can you please tell me that anyone having any kind of idea about a linear search? Linear search में हम एक लिस्ट ले लेते हैं, उसके बाद एक वैल्यू यूजर से मांगते हैं और वन बाय वन उसको सर्च करते हैं. कोई आइडिया है किसी को? चैट बॉक्स में नो टाइप करिए. फिर अगर जिनको आइडिया नहीं है वो नो टाइप करिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अनिरुद्ध का सबसे पहले मुझे मैसेज आ गया नो का. बाकी लोग भी नो टाइप करिए प्लीज. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गुरप्रीत का भी मैसेज आ गया. ठीक है, ठीक है. अब बाकियों का भी आ गया. सर्च अ सिंगल वैल्यू और पार्ट ऑफ लिस्ट. ओके, मुझे भगत ने कुछ एक क्लू दिया है, बाकी सब लोग मुझे नो नो बोल रहे हैं. ठीक है, देखिएगा जरा, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए.
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं आप सब लोगों को गाइडेंस दूं और मैं आप सब लोगों को बोलूं कि हाउ वी कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ये वो ओपन हो गया जो आपसे डिस्कस करना था, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। Kindly concentrate, my dear respected students, kindly concentrate. Here it is, we can talking about linear search here, and what we can do in that context. Kindly concentrate, my dear respected students. I'm just going to insert a table here like this, and we have mentioned the values 1, 34, 56, 7, 67, 89, 99, 100, 34, 36 डाल देते हैं, 36 and 25 here. So what we can do here, kindly concentrate. In case of a linear search, we talk about, we just ask the user to enter the value. For example, this is a 56 here. So what happened in that case? Previously we have done with a binary search in which we can just divide that particular into two different parts with the help of finding a mid value. But in that case, in case of a linear search, what we can do, we just search it, we compare it with this one, and this one. And whenever we just got that value, we can display the output that yes, this is on that particular location, the value is there. And if we don't find the value, then we are supposed to display that the value is not there in our list here. But the advantage of using that is that this one is very easy to use and understand. But when we talk about a disadvantage in comparison to a binary search, it will take more time, because in that case they again and again searching the content with all the elements which is there in the list, and then they are supposed to give me the output which is desired one. So what we can do, kindly concentrate, my dear respected students. We are just going to perform this in a practical demonstration. So what we can do, just kindly check here. So what we are going to do, मैं अच्छा ऐसे करता हूँ, मैं ना बार बार यूजर से वैल्यूज मांग के एक बार हम चेक करवा लेंगे. So मैंने क्या किया, list here, I'm just taking a list here, okay, eval here, and after that we just mentioned that input enter the list of इंटीजर्स. मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटीजर्स की है. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली एंटर द इंटीजर्स. कहता ठीक है. कहता अब एक लूप चला लेते हैं कि बार बार पूछने के लिए, नहीं तो फिर दोबारा मुझे प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि फिर चलाओ वैल्यूज भी दोबारा एंटर करो. तो मैंने क्या किया, वैल्यू हियर, एंड आई एम जस्ट आस्किंग दैट वैल्यू फ्रॉम द यूजर साइड, enter the value to be searched, value to be searched. तो मैंने क्या किया, अब वो ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं. तो यार सर्च कहां से करूं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट हियर वन फंक्शन हियर, दैट इज अ डेफ एल सर्च कर लेते हैं. मेरे ख्याल से एल सर्च, लीनियर सर्च सबको याद रहेगा. अरे भाग गया linear, SEARCH, search here, and what we can pass here, that is a list. ये वाली लिस्ट उसको पास कर देते हैं जो हमारे पास यूजर से आएगी, and the value which we are supposed to search for in that particular. So मैंने क्या किया, I am just taking found is equal to 0, कि अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ट्रू कर दूंगा, उसको मैं ट्रू कर दूंगा या उसको 1 कर दूंगा. तो मैंने क्या किया, for I in a range of, ये चलना शुरू करे, I begins from a 0, तो रेंज तक कब तक चले, पूरी लिस्ट को चेक करने के लिए. तो कहता है कि ये लेंथ ऑफ लिस्ट तक चले. कहता सर ठीक है, कहता सर बिल्कुल ठीक है. कहता अब क्या करना है, अब क्या मन में आ रहा है, अगर वो एलिमेंट जो हम सर्च करना चाहते हैं, अगर वो हमें उस लोकेशन पे मिल जाए. तो मैंने कहा अगर लिस्ट की आई लोकेशन पे मुझे वो चीज मिल गई जो मैं सर्च करना चाहता था, वो क्या थी, दैट इज अ वैल्यू. सो मैंने क्या किया, मैंने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया, प्रिंट क्या था वो, वैल्यू उसके आगे मैसेज दिया, इज फाउंड एट लोकेशन. अब लोकेशन देना है तो लोकेशन किसके पास है, आई. पर अगर आई सिर्फ लिखूंगा तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब
अगर मेरी वैल्यू एलिमेंट नंबर 2 पे है तो वो 1 मेंशन करेगा. इन दैट केस I have just mentioned in such a way that this is a position here. And what we are going to do next, my dear respected student, I just change the status of found from 0 to 1 here, and if we found that particular value, we are supposed to break that particular. And if found is equal to 0 all the time, if the found is equal to 0, so what it makes sense, it makes sense, friend, value which you are searching for not found in a list. So we can simply type it like this, that value is not found at a list location. So here what we can do, when we just pass that, we are supposed to call that function L underscore a search here. So what we can do, as mentioned earlier, we are just going to pass two different things, VALUE, that is a value here. And for repeating this thing again and again, and for stopping that particular thing, I'm just going to mention answer is equal to input, and input, after that we mentioned, do you want to continue? Do you want to continue? For this, what you are going to enter, Y or Y here, and what we can do here, Y oblique Y, Y oblique Y here, close this, inserting a is equal to symbol here and closing this. If agar ENS in N here, then what they are going to do, they are just going to break that particular, and with due permission, I'm just going to search that a data structure to here and clicking on that particular, and hopefully we get the desired thing. Okay, so what we can do here, we just inserting the values right now. That is, these are the values. These are the values what we are supposed to enter. Hit the enter key. Now, what happened? We are just going to searching for a 34. Hit that enter. Yes, they are saying that 34 is found at second position. Why so? Because the value of I is 1, I think so. But as we have mentioned increment here, that's why it shows that this is a 2. So again, if you want to, अच्छा अब मेरे को ना कल गुरप्रीत ने पूछा था कि सर सिर्फ यहाँ पे y करते जाएंगे तभी ये रिपीट करेगा या कुछ और भी हो सकता है. आप देख, अगर गुरप्रीत सुन रहा है मेरी बात तो मेरा बेटा ये देख, मैंने अब D टाइप कर दिया, D, तो मैंने जैसे एंटर किया फिर दोबारा वहीं पे आ गया एंटर द वैल्यू टू बी सर्च. अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिखा 78. अब मैंने यहाँ पे चेक किया, वो कहता है द वैल्यू इज फाउंड एट 4th पोजीशन. अब मैंने यहाँ पे दोबारा टाइप किया, मैंने टाइप की यहाँ पे किया R, अब मैंने R टाइप किया और अब इस बार मैं वो वैल्यू डाल रहा हूँ which is not there in that particular list. For checking this whether this syntax or this line of code is working or not, it says enter the value to be searched. I hit 95 and yes, this is perfectly working. It says 95 is not found in a list. तो मेरे बच्चों को, जितने बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है वो कृपया करके हैंड रेस करने की एक बार कृपालता कर दीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मैं अभी पूछने भी वाला हूँ, ये जो हैंड रेस कर रहे हैं इनसे मैंने पूछना भी है अभी, ये क्या समझ आया मुझे ये बता दो. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं किए फिर उसका मतलब है उनको समझ नहीं आया. अच्छा, मैंने अभी नाम ही लेना था संजना का, उसने हैंड रेस कर दिया. अनिरुद्ध अनम्यूट कर बेटा, क्या नहीं समझ आया मेरा पुत्र? वेरी गुड. अगर मेरी आवाज आ रही है अनिरुद्ध को, मेरे बच्चे को, तो वो अनम्यूट करने की कृपालता कीजिए. अनिरुद्ध जी. सर एक ओवरव्यू दे दो दोबारा से प्रोग्राम का. अच्छा, दोबारा से देता हूँ. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मेरे लिए ओवरव्यू कौन देगा? मेरा बच्चा जो मेरे लिए हैंड रेस करके आए, जो अनिरुद्ध जी को समझाना चाहेगा कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट पर्टिकुलर. वेरी गुड. हैंड रेस की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, नहीं तो फिर मैं नाम लूंगा वैसे जिन लोगों ने हैंड रेस पहले कर रखे थे. वेरी गुड. अरे वाह, हैंड रेस हुआ था किसी का? नहीं. सिमरन के पास जाऊंगा. सिमरन, आपको ये, आप बोल रहे हैं कि आपको ये समझ आया, फिर आपने हैंड रेस नहीं किया जब मैंने बोला आपको कि आप
इसका ओवरव्यू दे दीजिए। दिस प्रोग्राम इज Sir. क्लियर टू यू सिमरन जी? Yes, sir. Yes, can you please give the overview to respected Anirudh ji? Sir, working बतानी है पूरी। एक बार थोड़ा सा elaborate कर दीजिए। अनिरुद्ध जी आप क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे आपको जो चीज समझ नहीं आएगी, प्लीज सिमरन जी। तो सर हम जब स्टार्ट करते हैं तो एंटर द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, हमने यूजर को पूछा कि जी एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बता दीजिए जो जो डिजिट उनको चाहिए लिस्ट में। फिर उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगा दी ताकि हमें बार बार एक ही स्टेटमेंट, क्योंकि हमें शो करनी है कि अगर यूजर को मल्टीपल वैल्यूज सर्च करनी है तो वो मल्टीपल वैल्यूज भी बता सकता है। जैसे पहले उसने 78 कर दिया लिस्ट में, फिर 34 कर दिया, फिर 95। इसके जी। लिए हमने वाइल लूप में लगाई है वो अगर वाली हम ये स्टेटमेंट। वाइल लूप नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, बट उस केस में हमें बार बार मुझे लगता है प्रोग्राम दोबारा Yes, दोबारा sir. रन करना पड़ेगा, है ना? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, उसके ठीक है, बाद सर हमने अपना मेथड कॉल किया है एल सर्च। ठीक फिर है, उसके बाद उसमें हम फॉर लूप में जाते हैं क्योंकि हमें हर एक वैल्यू चेक करनी है। वेरी आई गुड, जो वेरी होगा गुड। वो हर एक वैल्यू चेक, फिर लिस्ट में हम हर एक वैल्यू चेक करेंगे। और इसी जब वो प्रोसेस वैल्यू को के क्या बोलते हैं सिमरन? जब हम एक एक एलिमेंट्स के पास आइटरेशन, जाके आइटरेशंस भी बोल सकते हैं, ट्रैवर्सल भी कहा जा सकता है। दिस इज आल्सो टू बी कॉल्ड एज अ ट्रैवर्सल, कि हर एक एलिमेंट के पास जाकर विजिट करना, दैट इज टू बी आल्सो टू बी कॉल्ड एज अ ट्रैवर्सल। हाँ जी मेरा पुत्र, आगे। ओके सर। फिर सर जब हमें वो मिल जाएगा वैल्यू, जो हमें मिल जाएगी तो हमने फाउंड की वैल्यू 1 कर देनी है और ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है ताकि हम लूप से बाहर आ जाएं। और और मतलब अगर वो उसका वैल्यू, मतलब ये है कि अननेसेसरी हम अगली वाली वैल्यूज को सर्च ना करें, है ना? ऐसा ही है ना? ये जी यस सर, जी, फिर हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी। और अगर हमारी वैल्यू 0 ही रहती है फाउंड की, तो हमें मतलब वो एलिमेंट जो है लिस्ट में नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे जो सिमरन यहाँ कल गुरप्रीत ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे सर ये जो आप लगा रहे हो, यहाँ पे आप पूछ रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी वाई की जगह हम कोई भी अल्फाबेट डालें तो चलेगा? वो हमने मेरे ख्याल से प्रूव कर दिया आज की। ये तो वाई सिर्फ यस दिखाने सर। के लिए है, ये अदरवाइज सिर्फ ये कहता है कि कैपिटल एन या स्मॉल एन करोगे तब स्टॉप हो जाएगा। पर अगर उसको रिपीट करने के लिए आप कोई भी कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग एंड हेयर। मेरे बच्चों को मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? अनिरुद्ध, यस सर। अनिरुद्ध मेरा पुत्र। सर जी सर। सर ये अगर सेम वैल्यू 2 बार हुई प्रोग्राम लिस्ट में तो क्या कैसे होगा? वो फिर आपका डिफरेंट सिनेरियो है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज आपकी साइमल्टेनियसली दो वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, है ना, तो ये क्या करेगा, एक बार ऐसा कुछ करके देख लें। बट उसके लिए क्या होगा, यू आर सपोज टू अप्लाई वन काउंटर हियर, वो एक एडिशनल पार्ट है। अगर आप मुझे बोलेंगे ना अभी करने के लिए, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सेशन दूंगा और बोलूंगा कि राइट अ प्रोग्राम वेयर वी आर सपोज टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ दिस वैल्यू। मतलब कि जो मैंने, समझ लीजिए मैंने 34 किया, तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइम दिस वैल्यू इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर, ठीक है? तो फिर वो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में फिर हमें ये लिस्ट जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं मेरा पुत्र, ये जो हम लूप को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वैल्यू को एक बार सर्च करने पे वो हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि बार बार वो वैल्यूज को वहां पे सर्च करे, और करने के बाद यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूजिंग अ फाउंड हेयर वी आर सपोज टू यूज अ काउंटर वेरिएबल, एक वेरिएबल जिसको आप काउंटर या काउंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। और उसको आप हर एक बार जब वो वैल्यू आपको मिलती है, देन यू आर सपोज टू that increment that counter and display that this particular value is available at this location and this location, and the occurrence of that value is to be for example 2, for example 3, for example 4। अनुरोध, मेरी बात, मेरी जो शब्दों की बात है वो आपको समझ आई? यस सर। ठीक है मेरा पुत्र। अच्छा, आप मेरे को थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए कि आई जस्ट वांट टू टेक वन टेस्ट हियर, but otherwise this is the similar kind of program what we have discussed practically here, and these are the values which we are supposed to enter here. So अभी मेरे को सब लोगों ने अलाउ किया है सब लोगों ने अलाउ का मतलब ये है कि मुझे, जब मैंने पूछा था तो मुझे किसी ने भी अलाउ नहीं किया था, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करूं। वेरी गुड। अच्छा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अदरवाइज मत बोलिएगा, मैं वन बाय वन कोशिश करूंगा आपसे बात करने के लिए। Here it is a practical demonstration what we have discussed here. Which of the following is a valid arithmetic operator in Python?
वैलिड, यहाँ पे याद रखिएगा, ये कहता है कि वैलिड अरिथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा है पाइथन में आउट ऑफ दिस। मेरे बच्चे 2 लोग मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए हैंड रेस कर चुके हैं, और आजकल मैं देख रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल मैं देख रहा हूं अनिरुद्ध और सिमरन जो बिल्कुल बाउंस बैक करके बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो लोग मेरे पहले साथी थे पार्टिसिपेट करने वाले वो थोड़े से बेचारे ढीले पड़े हुए हैं। मेरे पास अनिरुद्ध ने हैंड रेस किया, सिमरन ने, खुशी ने, बाकी भी मेरे साथी हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हिया के पास जाने के लिए। हिया थोड़ा सा गाइड कर दे बेटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरा पुत्र? फर्स्ट ऑप्शन। मेरी बेटी कहती है फर्स्ट ऑप्शन। मेरी बेटी एक बार मुझे बता देगी क्यों? क्यों, वाई? सर ये फ्लो डिवीजन है एंड अरिथमेटिक भी हो जाएगा, बाकी तो सर मतलब बाकी अरिथमेटिक का Operators नहीं है। पार्ट नहीं लग रहे आपको, बाकी Arithmetic, अरिथमेटिक का yes. पार्ट नहीं लग रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हिया कोशिश करिए कि आप एक्टिव रहें, ठीक है? एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर जस्ट बिगिन विद, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज माय डियर स्टूडेंट्स, राइट द टाइप ऑफ टोकन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये मेंशन करना है कि ये जो नीचे दिए गए हैं ये एक्चुअल में है क्या, क्या बोल सकते हैं इनको हम? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड रेस करिए दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट। वेरी गुड। इनको क्या बोला जा सकता है? ये जो इफ है इसको हम क्या बोल सकते हैं? और ये जो हमारे पास रोल अंडरस्कोर नंबर है ये क्या हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन अगेन, अच्छा अब जागे हैं कुछ लोग। अब अनिरुद्ध है, सिमरन है और भगत है। वेरी गुड, थैंक यू भगत, वेरी गुड। भगत बोल मेरा पुत्र, क्या क्या बोल सकते हैं इसको? फंक्शन। हाँ, इसको इफ को हम क्या बोल सकते हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ बोला जा सकता है इसको ना? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो नहीं बोला जा सकता, कुछ इसका मतलब मेरे ख्याल से इफ इज अ थिंग व्हिच हैविंग अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड दोज हैविंग प्री डिफाइंड मीनिंग्स इज टू बी कॉल्ड एज डैश। के से स्टार्ट होता है। अरे वाह, अरे वाह, हो खुशी का हाथ खड़ा। भगत का तो है ही है। नहीं पता भगत? नहीं पता? चल कोई बात नहीं। अरे वाह, अरे वाह, अनिरुद्ध भी आया है। खुशी तू बोल मेरा उत्तर। The keyword. अरे वाह, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ कीवर्ड। अच्छा, खुशी ने बोला ही है तो सेकंड भी खुशी। ये जो सेकंड वाला है हमारा रोल नंबर। Variable. अरे वाह, मेरे पुत्र ने बोला वेरिएबल। वेरिएबल के अलावा भी खुशी इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफायर, दिस इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर। मेरा बच्चा इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता, दैट दिस इज ऑल्सो टू बी कंसीडर एज अ आइडेंटिफायर। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इट सेज that we are talking about name the Python library modules which need to be imported to invoke the following function। ये तो मुझे लगता है यार बहुत आसान है, इसमें सब लोग ट्राई करना तो चाहेंगे मुझे लग रहा है। अभी तक मुझे पता नहीं, मुझे भगत का और अनिरुद्ध का हैंड अप नजर आ रहा है, बाकी लोगों का हैंड अप तो नहीं नजर आ रहा। गुंतेज, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपके पास, गुंतेज जी, इफ हाँ गुंतेज ने हैंड रेस किया है। गुंतेज, अगर मेरी आवाज आ रही है, तेरा ऑडियो नहीं कनेक्ट यार मुझे लग रहा है गुंतेज। हाँ अब हुआ है कनेक्ट। काइंडली अनम्यूट गुंतेज जी, काइंडली अनम्यूट। यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट दैट जो मैं पहले वाला है उसका क्या, कौन सा लिखूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा मॉड्यूल होगा फर्स्ट वाले का? सर मैथ। अरे वाह, क्या बात है, मैथ। और गुंतेज सेकंड वाले की अगर बात करूं तो यार सेकंड वाले का क्या होगा? रैंड इंट है ये सर, रैंडम। वेरी गुड मेरा पुत्र। अच्छा, इसका मतलब है कि जब पहले मैं तुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो तब नहीं बोल रहा था, आता नहीं होगा इसलिए नहीं बोल रहा था, है ना? ये बड़ी पावर दे दी तुम्हें ऑनलाइन ने यार, कि टीचर बोलता रहे जो मर्जी, और अगर आता है तो बोलेंगे, अनम्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे शैतान बच्चे मेरे प्यारे। चल कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट थिंग, काइंडली कंसंट्रेट मेरे प्यारे बच्चों, काइंडली कंसंट्रेट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कवलजीत सर यहाँ पे आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए पहले इस प्रोग्राम को देखिए।
and what it makes sense that we are just going to find errors. मुझे लगता है कि शायद अच्छा आउटपुट है, सॉरी, find and write the output of the following Python code. इसका आउटपुट बताना है। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए जरा क्या है ये। फंक्शन फन है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग जा रही है, ये फंक्शन कॉल किया, ये स्ट्रिंग भाग गई, इसके अंदर पहुंच गई, लेंथ फाइंड किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली और लूप चला दिया। अगर वो अपर है तो किसमें कन्वर्ट कर दो, लोअर में। अगर वो अल्फाबेट है तो किसमें कन्वर्ट कर दो, अपर में। नहीं तो क्या करो, ये बी भी मुझे लगता है कि कंकैटिनेट करने के लिए बोल रहा है। कोई मुझे आइडिया दे सकता है? एनीबॉडी इज गोइंग टू हेल्प मी आउट विद दैट? अनिरुद्ध, ये पहले से ही हैंड्स अप है कि अब किया आपने? अच्छा, अनिरुद्ध ने अब हटा लिया है, वेरी गुड। एक बार देख लीजिए, नो इश्यूज विद दैट। मुझे आपसे आंसर चाहिए और जो आंसर करना चाहता है वो हैंड रेज करेगा फटाफट। नुपुर को बुलाओ, नुपुर नहीं बोल रही आज। नुपुर मुझे लगता है कि व्यस्त है कहीं। नुपुर, कोई बात नहीं, इसको बाद में पूछता हूँ मैं। नॉर्मन अगर नेट ठीक है आपकी तरफ तो थोड़ा सा गाइड करिए हाउ इट वर्क्स। वेरी गुड, खुशी ने हैंड रेज कर दिया। अरे वाह, अनिरुद्ध ने भी हैंड रेज कर दिया। इसका मतलब इन दोनों में से किसी को आता है। खुशी बोल, पहले स्टार्ट करवा दे एक बार जरा। यस सर। तो हाँ, मेरा पहले बेटा। school2@com उसमें एस में जाएगा, ठीक फंक्शन है। कॉल होगा, उसके बाद हाँ, इसकी लेंथ फाइंड होगी, ठीक है। फिर रेंज शुरू होगी जिसमें हमेशा एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो इसमें कोई भी अपर केस नहीं है। अच्छा, मतलब कि इसका मतलब कहने का है कि आपका यहाँ पे कोई अपर केस नहीं है। और स्कूल तक अगर हम बात करें तो सिंपल यही चलता रहेगा मुझे लगता है ना। ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा? नहीं सर, स्कूल एलएफ तक तो वाला सेकंड चलेगा वाला ना? हाँ जी सर। और क्या होगा उस केस में मेरा पुत्र? यहाँ पे अगर स्कूल की बात करूं तो स्कूल क्या, एस जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो कैपिटल में होगा। वो कैपिटल में हो जाएगा। मेरा पुत्र कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है